गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसा लग रहा है घर से बाहर निकल के? बारिश वाला मौसम। तो बारिश तो अभी आ ही नहीं रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वो तो जर्मनी में आया है ना फ्लड, यहाँ कहाँ आए हैं? हाँ। सो स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे बैठे हैं, उसमें से किसने मेंस लिखा है? क्या हुआ, बोलती किसकी बंद हो गई? अभी तो सब लोग बहुत बोल रहे थे। हाँ, अभी बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ, क्या नहीं है? एलिजिबल नहीं है? कोई बात नहीं, अभी ग्रेजुएशन दे दो, फिर लिखो, फिर आईएएस बन के इधर आओ यही इंस्टीट्यूट में। या नहीं आओगे? फिर कौन आएगा यहाँ? हैं? प्लीज टेक योर सीट। तो आज का जो सेशन है, इट्स अबाउट मेंस आंसर राइटिंग स्किल। आज कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन आज का जो सेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है? क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई करोगे वो कहाँ पे मेंस में लिखोगे, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर इंटरव्यू आएगा और फिर रिजल्ट आएगा। बट द काइंड ऑफ नॉलेज विच यू विल एक्वायर, यू आर अनेबल टू प्रेजेंट, you won't be able to clear this exam. So good morning online students, all of you can hear me? Am I audible to all of you? Online students, please reply on the chat box. Am I audible to all of you? Okay, very good. Shreya, very good. Jolly. So जो आज का सेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा। टुडे विल बी ट्रांसमिटिंग सर्टेन स्किल्स विच यू विल रिक्वायर टू क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, हु हैज द बेस्ट रीजन? बिकॉज इफ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू इन इंटरव्यू, व्हाट यू विल रिप्लाई? एंड the answer of this very question will determine all of your journey, your preparation journey. It will daily motivate you. ठीक है? तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, whenever in life you are doing anything, motivation should be clear. If you are coming to class, why you are coming? If you are preparing for any certain exam, why you are preparing? What motivates you? That should be clear in your mind, first thing. Okay, so tell me, out of all of you, who has the best answer? कौन यहां पे करप्शन करने के लिए जाना चाहता है? रेज दी हैंड। ऐसा मोटिवेशन है किसी का? किसको पावर चाहिए? ये भी गलत मोटिवेशन है। एस्पायरिंग फॉर पावर इज नथिंग बैड, सी लिसन, बट you want power and that's why you want to become IAS. That motivation for that particular task is incorrect. Every individual has complete right to aspire for money, power, fame, status. Okay, that's how society works. So there is nothing bad, but for this exam, what should be the right motivation? Knowledge हो सकता है? हाँ, तो पीएचडी करो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? You can gain more deeper knowledge na doing PhD. Then why you want to become IAS? Give me your ideas so that I can come to know what is your state of mind and then I can mold it according to the requirement of examination. आप लोग IAS क्यों बनना चाहते हो? शांत। Decision making power, very good. But why you want decision making power? When you will get married, you will have your own family, you will have all the decision making power. Large scale pay society. Then go into politics.
It is there you will have ultimate decision making power, and bureaucracy will implement the decisions taken by the politicians. Bureaucracy is a policy implementing instrument, not decision making body. Yes. Then you start an NGO like Seva. Ila Bhatt, she is doing very good work. Aruna Roy, she was an IS officer. She started a movement which led to RTI in India, and it impacted our Indian administration to such an extent. For all coming decades it will improve the administrative efficiency. देखो आपके आंसर गलत नहीं है, डोंट गेट डीमोटिवेट. ओके, व्हाट आई एम टुडे ट्राइंग टू डू इज जस्ट टू मोल्ड योर माइंड so that you will get motivated for your further journey. Give me some more answers why you want to become IAS. And this question you will definitely face in interview, and you have to be prepared. Job कोई एक रीजन हो सकता है या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं? Yes, see, so at least give me 2-3 reasons. And can there be major reason and minor reasons? ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो इस तरह से क्लासिफाई करो. So what should be your main reason to become IAS, and what are your subsidiary reasons? So what you all told can be the subsidiary goals or secondary aspirations, that you want decision making power, you want to help women, but what should be your main goal? Policy, ground level. For that you can also go into politics. But sir, we are the policy makers. Policy makers are politicians. But in Implementation, then you can start NGO and you will have all freedom. This is also a particular way, so why not that particular path you are choosing, and why this? Okay, very good. देखो, if you want to become IAS, एक तो आपका मेन और सोल पर्पस क्या है और सेकेंडरी क्या है. फर्स्ट एंड जब मिशेल ओबामा और बराक ओबामा, when he became the president of America, a journalist asked a very good question to Michelle Obama, that as a first lady of America, what is your first duty? She replied, taking care of my family. She was right or wrong? Okay, so first and foremost, secondary goal of you is to take a job, and getting a government job will give you a kind of financial security for rest of your life, where you can not only feed yourself but your family, and you can become a very responsible citizen of a country, right? So यहां पे मैं लिख सकता हूं जॉब, ठीक है, then power, then you can have status. What else this job will offer you? Respect, it comes in status. What else do you think this job will offer you? Believe me, this is the best job in India you can aspire. There are certain candidates who are doing their MBA from IIM, and then they are switching over their career and they are preparing for IAS. For what reason? pride of nation. Huh? Pride of nation. That is one reason. Another? You know Jagdish Khattar? Who was he? Chairman of Maruti Udyog Limited. Doing an MBA, what you can aspire to become a CEO of a company? So by becoming IAS, you can become a CEO of many PSUs. एक जनरली कोई भी सीईओ बनता है तो उसको तकरीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्राइवेट सेक्टर में टू गो ऑन दी टॉप पोजीशन. बट if you become IAS, within 15 or 17 years you will be in a super scale and you can lead any PSU of the government. Okay, so IAS is the most powerful job in the country. See, here you will get exposure. Do you agree? आपका जब 2 साल में मसूरी में ट्रेनिंग होगा, you will be having exposure to such an extent that no other job in this country can give you that kind of exposure. A student
when he cleared this exam, he became IFS. He was sent to Bangladesh during training. They were made to stay in a 5-star hotel. वहां पे पूरी बांग्लादेश गवर्नमेंट आया और उन्होंने पूरा उनका चार्टर्ड प्लेन हायर किया, तो उनके बैच के जितने भी IAS ऑफिसर्स थे उनको पूरा सुंदरबन वाला एरिया नीचे से पूरा दिखाया. Then when they came to India in Bengal, Vice Admiral of Indian Navy, he came to receive them. He took them into the Indian submarine and he showed him such aspects which a normal citizen can never see. Because when this IFS officer will be representing the country or formulating the policy, he should know about nitty-gritty of everything. तो ऐसा एक्सपोजर कहां मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा. So through this exposure you get a platform to develop your potential, your skills. तो यहां पे एक अच्छा आंसर जो मैंने बनाया है, और इफ यू थिंक, कॉपी नहीं करना है, ओनली इफ it suits your mind. Here you use the concept of Amartya Sen. उनका concept था concept of human development. Use this. This is a standard concept and even interviewer also cannot deny. According to this concept, this is useful in essay, GS, कहीं भी आप इसको use कर सकते हो. Human Development Index इस theory पे based है. किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस मेजर करना है तो पहले कैसे मेजर करते थे? गोल्ड. द कंट्री विच इज हैविंग मोर गोल्ड विल बी मोर प्रॉस्परस, विल बी मोर पावरफुल. लेटर ऑन दे केम टू द क्राइटेरिया ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इफ अ कंट्री, जीडीपी क्या होता है? एक कंट्री में कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एक इकोनॉमी में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है. तो प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक्स में एक चीज अज्यूम कर ली जाती है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ये तीनों इक्वल रहेगा. जीडीपी का कंसेप्ट पता है ना सबको? इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन विल बी इक्वल. तो किसी भी एक चीज को आप नापो तो यू कैन इवेल्युएट हाउ मच कंजम्पशन इज देयर इन द कंट्री ऑफ मटेरियल थिंग्स. तो जितना ज्यादा आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा पीपल विल बी मोर हैप्पी. कंपेयर टू अमेरिका, सी इंडिया, हुज प्रोडक्शन इज मोर? यूएसए. सो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा तो मटेरियल वेल्थ किसकी ज्यादा होगी? यूएसए की. देन लेटर ऑन different political scientists and economists thought that this does not measure the spiritual or inner happiness of an individual. So this is an imperfect measurement of an happiness of a human society, GDP. So they came with an improvement with HDI, Human Development Index. So this index is based on 3 criteria. Which are these 3 criteria? Education, health, standard of living or longevity of life. Okay. So this concept was based on this theory of human development propounded by Amartya Sen. According to this concept, any individual, if he is getting opportunity to develop its potential, this kind of opportunities will determine the level of human development in the society. So if you are aspiring IAS to develop your own potential, then this is the right motivation to prepare for this exam. आप इस एग्जाम का तैयारी इसलिए कर रहे हो क्योंकि सर्विस में जाके आपका जो इनर पोटेंशियल है आप उसको एक्सप्लोर करें, उसको डेवलप करें, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले एंड यू कैन वर्क नॉट ओनली फॉर योर ओन सेल्फ, योर फैमिली, बट योर फॉर कंट्री, एंड यू कैन वर्क फॉर अ लार्जर गोल. मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? व्हेन यू डू अ जॉब you get money, that is extrinsic. But if you work in Tata or some चोर कंपनी, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहां पे ज्यादा होगा? चोर कंपनी में होगा या टाटा में ज्यादा होगा? चोर कंपनी में ज्यादा होगा या टाटा में ज्यादा होगा? चोर कंपनी में तो आपको खुद ही डिग्रेडिंग लगेगा कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं. आप दाऊद के एम्प्लॉय हो और आप टाटा के एम्प्लॉय हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहां पे ज्यादा मिलेगा? टाटा में, है ना.
तो ये सर्विस में जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. जस्ट इमेजिन you are in WTO representing 120 crore people. You are in UN. You are representing your nation whose history dates back to 2000 years, 4000 years, 5000 years. You are representing the whole nation. So this drives you to work more. मोटिवेशन ज्यादा रहेगा. प्राइवेट सेक्टर में इतना मोटिवेशन नहीं रहेगा. सो अगर मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, ज्यादा काम करोगे, आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे. ठीक है. एक मैनेजमेंट थियरिस्ट था, उन्होंने कंसेप्ट दिया था गोल सेटिंग थियरी. गोल सेटिंग थियरी. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, योर लेवल ऑफ मोटिवेशन विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ गोल you will decide. So motivation is directly proportional to the goal. So according to it, if your goal is less, motivation will be more or less. गोल अगर आपका छोटा होगा, मोटिवेशन छोटा होगा. गोल आपका बड़ा होगा, मोटिवेशन आपका बड़ा होगा. ठीक है. Now, compared to UPSC, just you aspire to prepare for GPSC, your motivation level will be less. You just aspire to become a class 4 employee. There is nothing bad in that, but the goal is smaller. The higher the goal, the more will be the motivation. इसलिए जो वर्किंग क्लास होता है ना, वो कामचोर नहीं होते बाय नेचर. उनका गोल ही क्या है? हमारे घर में मेड आती है. इफ शी इज कुकिंग और शी इज क्लीनिंग, व्हाट इज द मोटिवेशन? एट द एंड ऑफ द डे शी जस्ट गेट द पेटी अमाउंट ऑफ 4 to 5,000 crore. शी इज नॉट वर्किंग फॉर अ कंट्री. उसके पास कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? नहीं है. आप आईएएस की एग्जाम करोगे, जब जॉब करोगे, आपके पास एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा. व्हेन यू विल बी डीएम, यू विल बी एसपी, you will think that my decision will impact lives of thousands of people, so I should work hard. तो हमेशा गोल ऐसा डिसाइड करो which motivates you. Most people who are unsuccessful, the reason is they fail to determine the right goal, because the drive you get is from goal. So if you want to become successful in the life, first determine the right goal जो आपने कर लिया. That is preparing for the IAS. Now move on that path. Okay. So for doing anything, what we conclude, the motivation should be right. तो आप आईएएस का एग्जाम क्यों तैयारी करना चाहते हो, वो सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब we have worked on the goal. Now we'll see this exam UPSC. इसको हम समझते हैं, ये ओरिजिन कैसे हुआ. अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है ना, किसी भी एग्जाम को, तो उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ बॉडी विच इज कंडक्टिंग एन एग्जाम. इस एग्जाम को क्या बोलते हैं? जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? यस, CSE. ये एग्जाम को क्या बोलते हैं? दिस इज द बॉडी विच इज कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम. दिस बॉडी विल कंडक्ट मेनी अदर एग्जाम्स. CPF, they will be selecting many professors of many universities, medical service के लिए भी. So this is one of the service, and through this exam it is recruiting around 24 different services. These services are of two types: all India service, central service. ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो ये एग्जाम एमर्ज कैसे हुआ था? Any idea how it originated? सर वो ब्रिटिशर्स लाए थे. Yes, very good. ब्रिटिश टाइम पे हुआ था ना. आईएएस को पहले क्या बोलते थे? ICS, इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस. वेरी गुड. ठीक है. तो ये जो एग्जाम था, इससे पहले भी एक बॉडी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन. इट यूज्ड टू कंडक्ट. बट ये ओरिजिन कैसे हुआ था? इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है ना, तो इस एग्जाम का नेचर समझना बहुत जरूरी है. तो आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर पाओगे. इसलिए मैं आपको एकदम उसके ओरिजिन पर लेके जा रहा हूं.
ठीक है, क्योंकि जब तक इस एग्जाम का ओरिजिन कैसा है वो नहीं समझोगे तो इसमें कैसी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी वो आप नहीं बना पाओगे। इट इज फॉर दिस रीजन वी आर हियर। मैकॉले कमिटी क्यों बनी थी? एनी आइडिया? एनीवन? थोड़ा सा भी आइडिया हो? इंडिया में है? सिविल सर्विसेज, हाँ, वेरी गुड। इंडिया के पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ के लोग भी अपना कंडक्ट तो इसमें 1861 तो उससे पहले रिक्रूटमेंट कैसे होता था? उससे पहले ब्रिटेन से रिक्रूटमेंट होके आते थे। पेट्रोनेज सिस्टम पता है किसी को क्या होता है? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। देखो, रिक्रूटमेंट है ना, दो तरीके से होता है। ये आपके जीएस में भी काम आएगा तो इसको समझ लेना। एक होता है पेट्रोनेज सिस्टम और एक होता है मेरिट बेस्ड सिस्टम। पेट्रोनेज सिस्टम, इन अदर वर्ड यू कैन टेल एस नेपोटिज्म। पेट्रोनेज सिस्टम में क्या होगा, जो ओनर होगा वो नॉमिनेट करेगा जिसका नाम, ही विल बी ऑटोमेटिकली गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी या प्राइवेट कंपनी थी? आज की जैसे रिलायंस जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके शेयर होल्डर्स भी थे। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड बनता है। बोर्ड का एक जो सीईओ होता है आज के टाइम पे, वो वहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा, वाइसरॉय। समझ रहे हो? वो वहां पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, वाइसरॉय यहां पे इंप्लीमेंट करेगा। तो एक बोर्ड होता है। बोर्ड जो होता है ना कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में, इट्स अ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी। एंड जो सीईओ होता है, इट इज द पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग पोस्ट। ठीक है, एंड बोर्ड विल रिप्रेजेंट द ओनर्स, हु आर दे शेयर होल्डर्स। तो पेट्रोनेज सिस्टम में क्या होता था, जो भी बोर्ड जिसका भी नाम नॉमिनेट करेगा, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम आईसीएस ऑफिसर। तो वहां पे कोई भी मेरिट नहीं देखा जाता था। ठीक है, आपकी फैमिली का कोई भी बिजनेस है, अगर उस बिजनेस में आपके फादर आपको डायरेक्टर बना देते हैं, सो इट इज थ्रू मेरिट और पेट्रोनेज? इट इज थ्रू पेट्रोनेज। तो मेरिट सिस्टम आएगा तो मेरिट जज भी तो करोगे ना, तो उसके लिए क्या होता है, कंपिटिटिव एग्जाम को लाना पड़ता है। उस कंपिटिटिव एग्जाम में एनी कैंडिडेट हु विल स्कोर अकॉर्डिंगली दे विल गेट सर्विस, सिंपल। तो जब ब्रिटिश रूल था तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में पेट्रोनेज सिस्टम था। एंड हियर इन इंडिया द इंडियंस स्टार्टेड डिमांडिंग that Indians should also have the opportunity to work in Indian civil services. So because of such demand, the British government appointed a Macaulay committee. This committee designed a scheme of examination to recruit Indian civil service officer. इस कमेटी की जो फिलोसॉफी थी वो आज भी यूपीएससी उसी फिलोसॉफी पे काम कर रही है। इट इज फॉर दिस रीजन मैंने आपको बोला कि यूपीएससी का मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये एग्जाम का ओरिजिन कैसे हुआ था वो समझना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैकॉले कमिटी ने क्या बोला। तो मैकॉले कमिटी का उसका जो रिकमेंडेशन होगा 2000 पेजेस का, अगर उसका एसेंस हम देखें तो उसका एसेंस क्या था, टिल टुडे एंड आई थिंक फॉर नेक्स्ट 50 to 100 years दिस सेम फिलोसॉफी विल कंटिन्यू। उसकी किस फिलोसॉफी पे उसने उस एग्जाम को डिजाइन किया? उस टाइम पे लैटिन भाषा होती थी, लॉ होता था, इंडियन कल्चर के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लियर्ड दिस सिविल सर्विस एंड बिकम आईसीएस फ्रॉम इंडिया? इंडियन ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उस टाइम पे एज लिमिट होती थी 28 से 23। ठीक है, तो यूपीएससी जो एज लिमिट कम कर रही है ना, दैट्स वेरी गुड। एज लिमिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप 21 में एंटर होते हो, 60 में रिटायर होते हो, अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स की आपकी सर्विस है। ठीक है, जब आप सेक्रेटरी बनते हो ना तो आपको मिनिमम 35 to 36 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए।
नाउ जस्ट इमेजिन अ कैंडिडेट हु इज एंटरिंग इनटू सर्विस एट द एज ऑफ 35, उसके पास कितना नंबर ऑफ सर्विस रहेगा? तो वो कभी सेक्रेटरी बन पाएगा? इसलिए इस एग्जाम को जितना जल्दी हो सके उतना निकालो। तो जो बच्चे कम एज में इस एग्जाम को निकालेंगे वो जब पास होंगे उनकी बैच में उनसे बड़े भी होंगे, तो जब सेक्रेटरी बनने की बारी आएगी तो ऑटोमेटिक कंपटीशन चला जाएगा, बिकॉज दे विल बी रिटायर्ड। अभी रिसेंटली सीबीआई के हेड को अपॉइंट करना था, देयर वाज अ पर्सन, उसकी सर्विस में सिर्फ 6 महीना बाकी था, बट अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इफ एनी पर्सन हु इज अबाउट टू रिटायर और उसकी सर्विस में सिर्फ 6 मंथ है, he cannot be appointed the head of CBI, and then he lost a job, his dream job, just by 6 months. So just imagine if you will lose one attempt, you will lose the dream post. और ये DMBM ये कुछ भी नहीं होता है सेक्रेटरी के सामने। जो गुजरात का चीफ सेक्रेटरी है, his position is at this point of time is even more powerful than CM, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो पॉलिटिशियन को पता नहीं होता है। पॉलिटिशियन तो आते हैं, 5 साल रहते हैं, चले जाते हैं। 30-40 साल का एक्सपीरियंस किसको होता है? ब्यूरोक्रेसी को होता है। तो वो उनके पूछे बिना कुछ करते भी नहीं है। नो डाउट अल्टीमेटली डिसीजन पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है, बट हु इज द इन्फ्लुएंसर? इट्स बिकॉज ऑफ दिस सर्विस। तो उस टाइम पे इसलिए एज लिमिट होती थी 18 से 23। अभी भी यूपीएससी को करना है, लेकिन हम लोग नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है डीओपीटी को। जब भी कोई कैंडिडेट को सेक्रेटरी बनाना होता है, 6 महीने आते हैं, चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। दे डोंट हैव कैंडिडेट्स हुज सर्विस इज लेफ्ट ओवर अराउंड फॉर 3 to 4 years, ठीक है? तो एक कहावत है, जब भी आप टॉप पोजीशन पे जाओगे ना, इट्स नेवर क्राउडेड, इट्स ऑलवेज क्राउडेड एट द बॉटम। तो कम एज में जाओगे, आपके पास इतना रहेगा, यू विल गेट प्रेफरेंस। तो ट्राई टू क्लियर दिस एग्जाम एज अर्ली एज पॉसिबल, ईच डे इज इंपॉर्टेंट। और इसको क्लियर करने के लिए मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए, जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जो मैकॉले कमिटी थी, उसने क्या फिलोसॉफी पे इस एग्जाम को डिजाइन किया? उसकी फिलोसॉफी थी ट्रांसफरिंग एकेडमिक और यूनिवर्सिटी टैलेंट इनटू गवर्नमेंट सर्विस। क्या फिलोसॉफी थी उसकी? ट्रांसफरिंग एकेडमिक टैलेंट और यूनिवर्सिटी टैलेंट इनटू गवर्नमेंट सर्विस। तो एकेडमिक टैलेंट और यूनिवर्सिटी टैलेंट क्या होता है? जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे टॉप कौन करता है? गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना, जो ग्रेजुएशन में टॉप करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनके पास ऐसी क्या स्किल्स होती है? और ऐसा मैकॉले कमिटी ने क्यों डिजाइन किया, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट टैलेंट इनटू यूनिवर्सिटी सर्विस? आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे तो ब्यूरोक्रेसी का सारा काम किस चीज पे चलता है? पेपर पे। पेपर पे क्या डिसीजंस आप लिखते हो, रिटन रिकॉर्ड्स पे पूरी ब्यूरोक्रेसी चलती है। तो ड्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए। तो आईएएस ऑफिसर वो ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी होती है। ड्राफ्टिंग स्किल्स मतलब राइटिंग स्किल्स। तो अब समझ में आया, यूनिवर्सिटी टैलेंट इनटू गवर्नमेंट सर्विस। यूनिवर्सिटी में द कैंडिडेट हु हैज गुड राइटिंग स्किल्स विल गेट गुड मार्क्स। तो इसको मैकॉले कमिटी ने किस में डाला? ट्रांसफर किया ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है? सो विद दिस फिलोसॉफी मैकॉले कमिटी डिजाइन द स्कीम of examination for recruiting at that time Indian civil service. It is still prevalent now. ऐसे पेपर है ना, ऐसे पेपर क्या जज करता है आपका? ड्राफ्टिंग स्किल्स, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक अच्छे आईएएस ऑफिसर और एक इनएफिशिएंट आईएएस ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है? ड्राफ्टिंग स्किल्स। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर और एक इनएफिशिएंट पुलिस ऑफिसर में क्या डिफरेंस होगा? ड्राफ्टिंग स्किल्स। एफआईआर दर्ज करेगा, केस चलाएगा, कोर्ट में केस चलेगा, पेपर वर्क कैसे करता है वो। तो ये आप जो राइटिंग स्किल्स अभी सीखोगे, दिस विल बी विथ यू इफ यू विल क्वालिफाई द एग्जाम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
सो यू हैव टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स और ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो एकेडमिक टैलेंट और यूनिवर्सिटी टैलेंट क्या होता है? एबिलिटी टू मेमोराइज द डेटा, लॉजिकली अरेंज द डेटा एंड प्रेजेंट इन अ प्रिसाइज मैनर। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स को। किन किन बच्चों ने अभी तक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना ली है यूपीएससी मेंस क्लियर करने की? कुछ स्ट्रेटेजी अपने मन में बनाई होगी, रेज योर हैंड। किसी ने भी अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है? ओके, एनी अदर पीपल? मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रेटेजी बनाया हो? स्ट्रेटेजी बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो भी आइडिया है, या क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूपीएससी में लैंग्वेज पेपर है, कितने मार्क्स के होते हैं? मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स ज्वाइन होता है, क्वालिफाइंग है, तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है ना उसको, वेस्ट ऑफ टाइम है नहीं। देयर वाज अ स्टूडेंट, ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन जीएस बट ही फेल्ड इन लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर कितने आते हैं? एक तो इंग्लिश हो रहेगा और दूसरा कोई भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल, 8 शेड्यूल में से कोई भी, जैसे गुजराती या हिंदी। तो ये कितने मार्क्स का आता है? इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जीएस का प्रिपरेशन करने से पहले इस लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अगर इस लैंग्वेज पेपर में आप मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाए तो आपके जीएस के पेपर चेक भी नहीं होंगे। सो इवन दो दिस मार्क्स आर नॉट एडेड in the merit list but they will determine your whether you will be selected or not। और क्या होता है कि हम इंग्लिश में एग्जाम देते हैं ना, तो हिंदी भाषा से हमारा टच छूट जाता है, तो एग्जाम से पहले ना आपको स्ट्रेस होगा, लिख भी नहीं पाओगे। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू हैंडल दिस टू पेपर? हाँ जी बोलिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी मेरे को बताओ। मैं कैंडिडेट हूं, 1 साल बाद मुझे मेंस देना है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। I have, for example, 300 days. So how I will utilize this my 300 days to prepare these 2 papers? Tell me. ये मेंस का पार्ट है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे बताओ? सबसे पहला काम आप क्या करोगे इसको प्रिपेयर करने के लिए? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लाओ, लास्ट 10 ईयर्स के, उसका एनालिसिस करो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगा। दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ मेंस बट इट कैन बी वेरी सुसाइडल ऑल्सो इफ यू डोंट टैकल इट प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, एक लिस्ट बनाओ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इसको कैसे हैंडल करोगे, फिर इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे। देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आज आपको देता हूं। एक हिंदी न्यूज़पेपर बनवा लो, डेली 15 मिनट की रीडिंग करो, आपका पेपर का तैयारी कब हो जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, डेली 15 मिनट्स हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ चीज उसमें ट्रांसलेट करो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको उद्योगीकरण बोलते हैं, तो आपका भाषा पे पकड़ रहेगा, और कब आपका पेपर का तैयारी हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, और अलग से कोई टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। कुछ बुक्स लाओ हिंदी में, गांधी की आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट्स विथ माय ट्रूथ, स्टार्ट रीडिंग दिस। सो दिस इज हाउ यू विल बी कनेक्टेड विद द लैंग्वेज। नहीं तो क्या होगा, अचानक से 1 साल तक आप हिंदी में कुछ पढ़ोगे नहीं, एग्जाम से पहले 15 दिन में कैसे प्रिपेयर हो जाएगा। और डेली इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 2 पेपर को कैसे हैंडल करना है समझ में आ गया। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का पहले आप एनालिसिस करेंगे, न्यूज़पेपर बंधवाइए, हिंदी में भी पढ़िए। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। जीएस पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है? ऐसे कितने पेपर्स है टोटल? तो 4 पेपर कितने मार्क्स के हो जाएंगे?
ऑप्शनल, ऑप्शनल किस किस ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है? रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार करना है, सोचना है, ठीक है, साइमल्टेनियसली सब चीज बैलेंस करके करना है हमको, ठीक है। ऑप्शनल बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। एंड देन ये हो गया 1500। ऐसे कितने मार्क्स का आएगा? कितने ऐसे आते हैं? 125 मार्क्स ईच, 2 ऐसे लिखने होंगे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स? 600। हाउ मेनी वर्ड्स? एक ऐसे 1000 to 1200। एग्जाम जो दे रहे हो उसकी हर चीज आपको पता होनी चाहिए। लास्ट 10 इयर्स के ऐसे निकालो और उसको लिखो। दिस विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस एंड जज योर सेल्फ व्हाट स्किल्स। और अभी मैं क्लास में बताऊंगा ऐसे कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, सब मैं बताता हूं। उसको प्रैक्टिस करो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस लेके। फिर लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस ये उठाओ, पेपर 1 2 3 4 ऑप्शनल, उसको टॉपिक वाइज करो और उसके क्वेश्चन टैग की लिस्ट बनाओ। एग्जामिन, एल्यूसिडेट, एलेबरेट, क्रिटिकली एग्जामिन। कितने टाइप्स के टोटल क्वेश्चन टैग अभी तक यूपीएससी ने पूछे हैं? किसी ने बनाया? देन व्हाई यू आर जस्ट कमिंग टू क्लास एंड अटेंडिंग द क्लास इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ये सब चीज करो, एक प्रॉपर से फाइल बनाओ एंड स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का आता है? 2 275 मार्क्स का आता है ना। चलो, अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन किसने पढ़ा है अच्छे से? डाउनलोड किया कभी? पूरा पढ़ा? आप देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हो और आपने उसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है अभी तक? उसमें एग्जैक्टली लिखा है व्हाट स्किल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट। वो कौन कौन सी स्किल्स है? एबिलिटी टू टेक डिसीजन और बैलेंस डिसीजन और बैलेंस्ड ओपिनियन इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ऐसा किसी ने पढ़ा? प्रेफरेंस विल बी गिवन मोर हु विल बी राइटिंग प्रिसाइज एंड ससिंक्ट आंसर, ऐसा किसी ने पढ़ा? यूपीएससी का पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसकी एक एक लाइन पढ़ो। प्रीलिम स्टेज, मेन स्टेज, ऐसे स्टेज, उसमें ना टॉप हेडिंग होगा स्किल्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी। वो पूरा लिखो और उसको समझो। जैसे मेंस एग्जामिनेशन है उसमें इसको नोट डाउन करो सब लोग, क्योंकि आप लोग तो करोगे नहीं। नोटिफिकेशन में ये लिखा है और उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू assess the overall intellectual traits. Mains examination is intended to assess overall intellectual traits and depth of understanding. Mains examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. Questions in mains will test, next point, questions in mains will test candidates' basic understanding, will test the candidates'
basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals objectives and demands. Conflicting socio-economic goals, objectives and demands. Third, the candidate must give relevant, meaningful लिखा बोला है इंडिया के बारे में, लिख के आओगे पाकिस्तान के बारे में, ऐसा नहीं करना है. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल एंड सशेंट, SUCCINCT, सशेंट आंसर. ये यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है. You should have to develop ability to take view on conflicting socio-economic goals. इसका मतलब क्या होता है? ऐसे आता है, इंटरव्यू है या मेंस है. ग्लोबलाइजेशन गुड और बैड, आप क्या स्टैंड लोगे? गुड. Why good? It's bad also, na? Because it is having many negative effects. When you will open your economy, you will be exposed to multinational companies. Your domestic companies will not be able to compete them. क्या इंडिया में आज एक भी ऐसी कंपनी है जो चिप बनाती है इंटेल के अलावा? क्या इंडिया में आज एक ऐसी कंपनी बता दो जो यूट्यूब के कंपटीशन में है, फेसबुक के कंपटीशन में है? फिर इट्स बैड. डिपेंड करता है ना, वो कोई करना चाहता है नहीं करना चाहता है. मेरे को आपको कोई पूछेगा ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड, क्या जवाब दोगे? एबिलिटी टू टेक व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स. बताओ. ये मैं आगे बताता हूं, ठीक है? आपको 2 मिनट रुको. रिलेवेंट एंड सशेंट इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू एनालाइज. इंडिया में ओलंपिक्स में इंडिया को कम मेडल मिलते हैं चाइना के कंपैरिजन में. इसकी वजह क्या है? 120+ करोड़ पॉपुलेशन है. अब इसके कॉजेस को आप एनालाइज करो. किस किस एंगल से एनालाइज करोगे? बताओ. एक तो जनरली जो सब लोग करेंगे, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज कम है कंट्री के पास. फिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर इंडियाज लो परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स? शो मी योर एबिलिटी टू एनालाइज. मुझे खाली डायमेंशंस बता दो, किस किस डायमेंशन से आप देखोगे. फिर मैं आपको ऐसे डायमेंशन बताऊंगा जो आप कभी सोच भी नहीं पाए होंगे. चलो बताओ मुझे. लैक ऑफ सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है. फिर रिसोर्सेस, फिर और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ओलंपिक्स या वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स में इंडिया, प्रमोशन नहीं होता इंडिया में, ठीक है. वो ब्यूरोक्रेसी, रेपटेपिज्म हो गया 3. फिर और चलो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड. और विड्थ बढ़ाओ एनालिसिस की. मुझे ऐसे डायमेंशन बताओ जो दूसरा कैंडिडेट जो एनालाइज कर ही नहीं पाएगा, वहां पे आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा. चलो प्रॉपर और बताओ मेरे को. हिस्टोरिकल फैक्टर्स. इंडिया में क्रिकेट फेमस क्यों है? फ्रेंच रूल की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से. केरला रिवर ड्राफ्टिंग एक फेस्टिवल होता है ना. नॉर्थ ईस्ट के लोग फुटबॉल में ज्यादा अच्छे होते हैं. क्यों? पहाड़ी एरिया होता है, हाइट कम होती है, बचपन से पहाड़ चढ़ते हैं, उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. हरियाणा पीपल आर
मोर प्रोफिशिएंट इन कुश्ती, फाइटिंग, रेस्टिंग बाय जीन्स। अलेक्जेंडर आए थे ना, उनके अंदर आर्यन रेस है। देखना पंजाबीज और जो हरियाणवीज होते हैं काफी लंबे और गोरे होते हैं। ऐसा एनालिसिस, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू एनालाइज। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना आप डाइवर्स तरीके से सोचने की क्षमता रखते हो, ये यूपीएससी चेक करता है। तो ये आपको आंसर में लिखना है। अगर कोई कैंडिडेट है वो सिंपल लिखेगा रिसोर्सेज, गवर्नमेंट एपिज्म, तो मार्क्स तो उसको भी मिलेंगे, लेकिन आप ऐसा लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स ज्यादा मिलेगा ना। तो यूपीएससी को क्लियर करना है तो पहले यूपीएससी की डिमांड को समझो, क्योंकि जब तक आप उसकी डिमांड नहीं समझोगे तो स्किल्स कैसे डेवलप करोगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ो और इसको डेली पढ़ो और इसको डेली समझने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे में क्या क्या स्किल्स चाहिए लिखो। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ability to arrange ideas in orderly fashion, ability to arrange ideas in orderly fashion, and to write concisely, and to write concisely. Yes, Devanshi, people interested in games are not well determined for that higher. Yes, finance problem, Darshil, you are very correct. इंटरव्यू, व्हाट स्किल्स, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। हाँ, मैं अपना कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, और नोटिफिकेशन में भले लिखा है लेकिन यहां पे उसको लिखो, आई एम डेलिबरेटली मेकिंग यू राइट। ओके, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। मेंटल अलर्टनेस लिखो, इंटरव्यू में क्या क्या स्किल्स चाहिए। मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, असिमिलेशन, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? कितने डाइवर्स आइडियाज को आप फास्ट एब्जॉर्ब कर सकते हो। आप ब्यूरोक्रेसी में बनोगे या फाइलों का 1000 फाइलें होगी, आपका ग्रास्पिंग पावर ही कम होगा तो डिसीजन कब लोगे? पढ़ के, तुरंत पढ़ के उसका आइडिया, आपको उसका एसेंस पता चल जाना चाहिए। एबिलिटी टू एसिमिलेट। नेक्स्ट, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। मैंने स्टार्टिंग में आके आपको पूछा आपको आईएएस क्यों बनना है, किसी के पास क्लियर और लॉजिकल एक्सपोजिशन था? दैट मीन्स आप मेंटली इनएफिशिएंट हो? नहीं, आपने पहले सोचा नहीं है। समझ रहे हो? इट इज बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। आपको आईएएस क्यों बनना है? दिस 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 रीजन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। I want to buy a particular car. On what reason? This, 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 this. Clear and logical exposition. I like white shirt. Why? Because this, this, this. कोई भी चीज होती है ना, उसका जो पीछे का रीजन होता है ना, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। This is what differentiates a good IAS officer from a less efficient IAS officer. This will affect your decision making. ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ जजमेंट, बैलेंस ऑफ जजमेंट। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज पे एक्सट्रीम व्यू लेना है कि ग्लोबलाइजेशन गुड ही है, नहीं, एक बोलेगा ग्लोबलाइजेशन बैड ही है। बैलेंस जजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑलवेज गुड? नो, इट्स ऑलवेज बैड। पीएसयूज, दे आर इनएफिशिएंट, उसको पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दो, नहीं चाहिए। अब ऐसे आप गवर्नमेंट में जाके डिसीजन लोगे तो क्या होगा, देश की हालत क्या होगी? पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो उसके ऊपर। अरे
पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी भी अनबैलेंस्ड दिमाग के पास कभी भी पावर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी एनार्की इन सोसाइटी। If there is a police officer, he is having hatred against some particular community or section of society, what kind of decisions he will take? What kind of IS officer he will take this kind of decisions? बैलेंस माइंड तो होना चाहिए ना। वुमेन्स पैट्रियार्कल माइंडसेट का होगा, उनको घर पे बिठाओ, बाहर मत निकालो। दे शुड ऑलवेज बी इंफीरियर टू मैन, जैसा मैन बोलेगा वैसे ही वुमन करेगी। तो ये स्किल्स है ना, जब आपकी शादी होगी तो लड़का भी जज करने में काम आएगी आपको, ठीक है? हाँ बोल रहे हैं देखो सब लोग। नेक्स्ट देखो, इंटरव्यू में आप जाओगे ना, वो 15 मिनट बात करके ना ये सब चीज से आपको पता कर लेते हैं आपका स्टेट, आप कैसे आदमी हो। ये आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूजफुल होगा। इफ देर इज सम कनिंग पर्सन यू डोंट वांट टू मेक फ्रेंड, यू कैन जज थ्रू ऑल दिस थिंग्स वेदर हुज इंटेंशन इज गुड्स टूवर्ड यू, और किसी पर्सन का खराब इंटेंशन है, ठीक है? देन एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, ability for social cohesion and leadership, interview cohesion and leadership। जब आप IAS DM या SP बनते हो तो आपको काम नहीं करना है, आपको काम करवाना है। तो you should have ability to develop a team, work in a team, motivate your subordinate employees, because आप तो SP हो, आपके पास तो लाल बत्ती वाली गाड़ी है, कांस्टेबल के पास क्या है? लाठी है सिर्फ उसके पास। तो हाउ यू विल मोटिवेट हिम? दैट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ और EQ की जरूरत होती है वहां पे, ठीक है? सो एंड फाइनली इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, अभी ये स्किल्स को हम देखते हैं, हम आंसर राइटिंग के थ्रू कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, मेंस में कैसे करेंगे। मेंस में आप आंसर लिखोगे, ठीक है? क्या एग्जामिनर आपका आंसर बिना पढ़े ये बता सकता है कि आपने अच्छा आंसर लिखा है या खराब आंसर लिखा है? बिना पढ़े। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कैसे? वो पढ़ेगा नहीं ना। मैंने तो खराब कंटेंट लिखा है, उसको भी तो मैं हाईलाइट कर सकता हूं, अंडरलाइन कर दिया, तो क्या मैंने अच्छा आंसर लिखा है? देखो, एक आंसर शीट आएगी आपके पास, अज्यूम करो यू आर दी पेपर चेकर ऑफ UPSC, ठीक है? एक आंसर शीट आपके पास है कैंडिडेट A की, और एक आंसर शीट है कैंडिडेट B की। Without reading the answers, can examiner judge whether the candidate A or B has written good content or bad content? Tell me. ऐसा कर सकता है या नहीं? कैसे? खराब हैंडराइटिंग हो तो अच्छा कंटेंट हो सकता है। फिर खराब अच्छा हैंडराइटिंग हो, इररिलेवेंट कंटेंट तो लिख सकता है ना उस टॉपिक पे बच्चा। फिर बताओ। What do you mean by effective presentation? You are very correct. But what do you mean by effective presentation? How to develop effective presentation? और प्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है? कंटेंट तो अच्छा लिखा है ना, तो मार्क्स तो मिलेंगे। कंटेंट मैं अच्छा लिखता हूं पॉइंट बेस्ड, और मैं खराब कंटेंट लिखता हूं पैराग्राफ बेस्ड, किसको अच्छा मार्क्स दोगे? देखो, पॉइंट बेस्ड हो या पैराग्राफ बेस्ड हो, इट्स इमटेरियल इफ कंटेंट इज गुड। You have worked hard, you have that particular content, then examiner has to give mark.
whether it's written in point form or paragraph form, how does it matter? और बताओ, सोचो। मैं कंटेंट खराब लिखूंगा, डायग्राम अच्छा बना दूंगा। दो मुझे मार्क्स दो, मुझे आईएएस बना दो, ऐसा थोड़ी होता है। सर कितना जल्दी और इजीली उसको समझ में आ जाए। दैट इज योर एबिलिटी, ड्राफ्टिंग स्किल्स डेवलप करती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कंटेंट अच्छा हो। और वो जब पढ़ेगा तब उसको इजीली समझना है। यहाँ पे एग्जामिनर को पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े आपका आंसर खाली ऐसे देख के बता देगा कि अच्छा कंटेंट है खराब कंटेंट है। देखो यहां ध्यान से देखो, इसको समझो। एक कैंडिडेट ए है एंड दिस इज कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए का पहला पैराग्राफ इतना है, दूसरा पैराग्राफ इतना है, तीसरा पैराग्राफ इतना है, चौथा पैराग्राफ इतना बड़ा है, समझ लो। ये कैंडिडेट बी है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ इतना है, दूसरा पैराग्राफ इतना है, तीसरा पैराग्राफ इतना है और चौथा पैराग्राफ इतना है। मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं इससे? है किसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा? अभी आप बताओ। क्यों? कैसे बता दिया? कैसे बैलेंस कंटेंट है? स्ट्रक्चर बैलेंस है ना, कंटेंट थोड़ी ना बैलेंस है। देखो ये जो कैंडिडेट ए है ना, ये अच्छे से पैराग्राफ नहीं बना पा रहा है, ये बना पा रहा है। तो किसने ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की होगी? हाँ, और राइटिंग प्रैक्टिस कब की होगी? जब कंटेंट होगा तो की होगी ना। ये देखो, जब आप ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आंसर लिखने से पहले सोचोगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा, बॉडी कैसे लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एक पैटर्न होगा पैराग्राफिंग में। यहां पे ये एक पैटर्न बड़ा लिख देगा, एक छोटा लिख देगा, उसको जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे लिख रहा है। कैंडिडेट ए, उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, तो किसने ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा? बी ने। तो बाय डिफॉल्ट कंटेंट किसके पास ज्यादा होगा? तो एग्जामिनर जिसको 30-30, 40-40 साल हो गए पेपर इवेल्युएट करके, वो ऐसे बता देंगे आपको। तो आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना है वो रेडी रहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो यू आर वेरी करेक्ट कि प्रेजेंटेशन स्किल्स देख के हम बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जिसने हार्डवर्क किया होगा ना, वही ऐसा लिख सकता है। अभी आप मुझे ये बताओ, दोनों ने सेम कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, लेकिन मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? एक मार्क्स ज्यादा मिलेगा। एग्रीड एवरी वन ऑफ यू? पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, टोटल जीएस में कितने क्वेश्चन हो गए? हर क्वेश्चन में मैं एक मार्क अगर ज्यादा गेन करता हूं विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज, जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माय प्रेजेंटेशन, हाउ मच मोर मार्क्स आई कैन गेन? ऑप्शनल के 2 पेपर है, 1-2, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ये स्ट्रेटेजी से चलता हूं और ये ट्रिक लगाता हूं, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क मुझे ज्यादा मिलेगा। ऑप्शनल में कितने क्वेश्चन आए? 40 मार्क्स ज्यादा मिले। ऐसे में मैं अच्छा प्रेजेंटेशन करूंगा, कैन आई गेन 20 मार्क्स, 10 मार्क्स इन बोथ दी ऐसे कंपेयर टू अदर कैंडिडेट? टोटल करो। मेंस में 140 मार्क्स का आप मतलब समझते हो? मेंस आंसर राइटिंग स्किल अभी पता चल रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है। विथ सेम लेवल ऑफ नॉलेज, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन, you can become IAS or your whole life will be spoiled. और ये तो सिर्फ एक चीज है, ऐसी 50 चीजें हैं। आप नहीं करोगे, ये नेशनल लेवल की एग्जाम है, दूसरे बच्चे करेंगे। और इस एग्जाम को समझो, देखो ये जो एग्जाम है ना, इसमें एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है। एब्सोल्यूट मार्किंग यूनिवर्सिटी में होती है। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 बच्चे हैं, अगर 100 के 100 बच्चों ने 35 के ऊपर स्कोर किया तो सभी पास हो सकते हैं ना। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में सिर्फ 1000 सीट्स है,
1000 कैंडिडेट्स ही पास होंगे तो मेरिट बनेगी। तो पिछले साल से ज्यादा मार्क्स आपने इस साल गेन किए हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आप पास हो गए, क्योंकि आपको रिलेटिव स्कोर देखना है। अगर दूसरे बच्चों ने आपसे भी ज्यादा गेन कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे। तो देखो, इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता। फेल होना और क्वालिफाई नहीं होना दो अलग चीज होती है। अब समझो, जो 101 रैंक है ना, वो फेल नहीं हुआ है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, क्योंकि वो इन 1000 बच्चों से ज्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाया है। रिलेटिव मार्किंग है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में एब्सोल्यूट मार्किंग होती है, तो ये रिलेटिव मार्किंग होती है ना, ये बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो बहुत दिमाग से आपको इस एग्जाम को करना है और ये सब चीजें करनी है, ठीक है। ये सब चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, इट कम्स थ्रू वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। कोई नॉर्मल टीचर आपको कभी बता भी नहीं पाएगा ये, ठीक है। और आप लोगों को अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ये चीज पता चल रही है, टेक एडवांटेज ऑफ इट, इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड क्लियर दिस एग्जाम। 140 मार्क्स का डिफरेंस पड़ेगा आज का लेक्चर। आप चाहे 100 एनसीईआरटी पढ़ लो, 1000 बुक्स पढ़ लो, क्या 140 मार्क्स गेन कर सकते हो? पूरा का पूरा एक जीएस का पेपर हो जाता है। जीएस के एक पेपर मैक्सिमम 90 मार्क्स बच्चे लाते हैं, हिस्ट्री पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। सो ये क्या था? प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? इसमें है ना, ये लगाओ 10% रूल। कोई भी आंसर होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए, उसका डेफिनेशन लिखना है, राइट्स इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऐसा एक समझ लो क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का। अब मैं वर्ड एलोकेशन करूंगा, ठीक है। पहले क्या लिखूंगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा? फॉर एग्जांपल मीनिंग। मीनिंग में कितने 10% वर्ड्स गए तो 20 वर्ड्स चले गए। कंक्लूजन में कितने वर्ड्स चले जाएंगे? 40 वर्ड्स मेरे कंज्यूम हो गए। कितने वर्ड्स बचते हैं? 160 वर्ड्स बनते हैं। 160 वर्ड्स में किस में लिखूंगा? बॉडी में कितने डायमेंशंस है? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर कितने वर्ड्स दूंगा? यहां पे। अब समझ लो, मुझे 4 पॉइंट लिखने हैं यहां पे, 1 2 3 4। हेडिंग डालूंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और अंदर में वर्ड्स लिखूंगा। तो हर पॉइंट पे मैं कितने वर्ड्स एलोकेट करूंगा? 20। अब मुझे ये बताओ, ये जो स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं थॉट फ्रेमवर्किंग, मतलब आंसर कैसे आप लिखोगे उसका पहले आप ड्राफ्ट रिटर्न में करोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। 3-4 महीने जब आप कंटिन्यूसली ये करोगे ना, तो ये प्रोसेस है ना, फिर सबकॉन्शियस हो जाएगा। 1 साल बाद फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो सीधा रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि इसको ऐसे 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 लिखना है। तो इस हद तक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी इसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लिख के करोगे। बट एक ही चीज जब आप बार बार करते हो ना, तो ये सबकॉन्शियस हो जाएगी। और इसको इस हद तक प्रैक्टिस करना है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। देखो, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है क्या? ब्रेक, गियर। आप तो फोन पे भी बात कर रहे हो तो भी ऑटोमेटिकली होता जाता है ना, क्यों? प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग डज नॉट मेक्स मैन परफेक्ट, इट इज प्रैक्टिसिंग परफेक्टली मेक्स मैन परफेक्ट। इस हिसाब से कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो और इस हद तक इसकी प्रैक्टिस करो कि ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। 2-3 हजार आंसर लिख डालो डेली, 2-3 आंसर लिखो डेली, जब तक पास नहीं होते हो तब तक। रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा।
दूसरा कैंडिडेट है वो या तो पहला ऐसा थॉट फ्रेमवर्किंग करेगा ही नहीं, तो उसका आंसर अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और करेगा भी और अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, यस देवांशी, इट इज करेक्ट। कंक्लूजन भी तो रीड करना पड़ेगा ना जादव, बिना रीड करे हमको चेक करना था। अब ये 10% रूल सबको समझ में आया? इसको ये मतलब ऐसा कोई ऐसा कुछ बड़ा रूल नहीं है, बट इट्स जस्ट हाउ यू विल कॉन्शियसली थिंक ऑफ अलोकेटिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द आंसर। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम कहां होती है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, समझ लो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। अब दूसरा तरीका आंसर में कैसे लिखेंगे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं ना, दे मेक लॉ इन द स्केलेटन फॉर्म, देन ब्यूरोक्रेट्स विल फिल द लॉज, बाय लॉज, सब लॉज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हु हैज द पावर टू मेक लॉ? लेजिस्लेचर। बट द एग्जीक्यूटिव विंग थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज टेकिंग द लेजिस्लेटिव पावर। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव। बट लेजिस्लेचर विल मेक द ड्राफ्ट लॉ इन द स्केलेटन फॉर्म, और उसके अंदर जो फिलिंग करते हैं ना वो ब्यूरोक्रेसी या लेजिस्लेटिव विंग करते हैं। तो लेजिस्लेटिव विंग इज एग्जीक्यूटिव विंग इज एब्जॉर्बिंग द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को 2 मिनट छोड़ दो। नाउ क्वेश्चन इतना ही आता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। किसी भी क्वेश्चन को पहले छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो और फिर उसको आंसर दोगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा ना, व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्रीड। फिर आगे मैं और क्या क्या लिखूंगा इसमें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन छोड़ दो, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ नेसेसरी इविल, इंटरनेट इज अ नेसेसरी इविल, ऐसे हो गया। आंसर में मैं और क्या लिखूंगा? नेसेसरी इविल, बस इतना ही लिखा है। पहले तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा था ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखना है, इसमें क्या लिखोगे? डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टू राइट मीनिंगफुल और रिलेवेंट आंसर। जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो रिलेवेंट आंसर कैसे लिखोगे आप? तो इसमें जो डायमेंशंस है ना वो हिडन होता है। अब डायमेंशन क्या होता है? कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक का क्या होगा? इंट्रो, मीनिंग, फीचर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिफॉर्म्स, कंक्लूजन। ये क्या हो गए? ये डायमेंशंस हो जाते हैं टॉपिक के। ये हमेशा स्टैटिक रहेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, टॉपिक ये रहेगा, जो डायमेंशन पूछा होगा उस पे वर्ड्स ज्यादा लिखने, बस। हमेशा आंसर स्टार्ट यहां से करना है, एंड यहां पे करना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है उस पे ज्यादा वर्ड लिख दो, फीचर्स पूछा है उस पे ज्यादा लिख दो। तो आपका जो बेस है ना वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसा फंडामेंटल राइट्स है, मीनिंग, फीचर्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कंक्लूजन। फंडामेंटल ड्यूटी ले लो, मीनिंग, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटी, कितने टाइप्स के हो गए वो, उसके फीचर्स हो गए, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, रिफॉर्म, कंक्लूजन। ये किसी में भी ले लो, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। तो ये डायमेंशंस होते हैं। तो इसके क्या डायमेंशंस लिखेंगे हम? देखो, नेसेसरी मींस उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। तो नेसेसरी है, वेरी गुड, तो मैं क्या लिखूंगा? राइट्स इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखो पहले भी हमने वही किया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जो एक्सप्लिसिट था, यहां पे क्या है? हिडन है।
तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डीएल। फिर इंटरप्रेट करो इसको। हाँ, इविल है तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ delegated legislation. It is necessary. Why it is necessary? Because it is useful. It is useful, so we'll write positive aspects. It's evil. Why it's evil? Because it might have some negative consequences. What are its negative consequences? तो ये मैंने देखो क्वेश्चन इंटरप्रेट किया, फिर कंक्लूजन लिख दूंगा। एक और हिडन डायमेंशन है अंदर क्वेश्चन में। इविल है तो जस्टिफिकेशन कैसे होगा? यहां मैंने कंक्लूजन लिख दिया। अभी यहां पे ना एक हिडन डायमेंशन है। मोस्ट ऑफ बच्चे वो हिडन डायमेंशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जिसने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी वो हिडन डायमेंशन को पकड़ेगा, यहां पे कंटेंट लिखेगा, तो किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। देखो पॉजिटिव भी है, चलो ठीक है, नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव को कम करने के लिए हमको क्या उसके सेफगार्ड्स भी तो लिखेंगे ना। ये एग्जामिनर ने पूछा नहीं है बट एक्सपेक्ट तो करेगा। देखो नेसेसरी इविल है, सिंस इट इज नेसेसरी कैन इट कंप्लीटली इरेडिकेटेड, बट इट इज इविल ऑल्सो, सो हमको उसको रखना भी है बट उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम भी करना है। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो बेच दोगे, रिपेयर करवाओगे ना आप। इट इज नेसेसरी बट इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो, इविल्स ऑल्सो, तो इविल्स को कम करो। सो दिस इज द हिडन डायमेंशन। तो क्वेश्चन में हमेशा हिडन डायमेंशंस को डिटेक्ट करना होता है। एक मार्क ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने मार्क्स का डिफरेंस आएगा? मोर देन 100 मार्क्स। यूपीएससी के क्वेश्चन कभी भी एक्सप्लिसिट नहीं होंगे। वो हमेशा ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, राइट पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स होता है, उसको पहले क्या करना है, छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करना है। अब इसके आप वर्ड्स एलोकेशन करो। अब ये जो हिडन डायमेंशन है इसमें तो हम कम वर्ड्स ही देंगे ना, तो इसमें 20 ऐसे कर दो। कितने बच रहे हैं? तो बॉडी में कितने चले जाएंगे? देखो हिडन डायमेंशन, ये हिडन डायमेंशंस आपको फेल कर भी करवाएगा, पास भी करवाएगा। ठीक है। सो ये हमने क्या देखा? पहले हमने क्या देखा? प्रेजेंटेशन स्किल्स। सेकंड हमने क्या देखा? एबिलिटी टू इंटरप्रेट दी क्वेश्चन। अभी थर्ड हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। How to write introduction? Give me some suggestions how to write introduction. मीनिंग से जनरली स्टार्ट कर सकते हैं ना। स्लाइड बैकग्राउंड ऐसे आता है, ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड। मैं आप सब लोगों को 5 मिनट दूंगा, इसको लिखो। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, और 2-3 इंट्रोडक्शन मेरे को लिख के बताओ। चलो पेपर खोलो, पेन लिखो, जो भी दिमाग में आता है। इट्स एन एक्सरसाइज, ट्राई टू पार्टिसिपेट बिकॉज आफ्टर दिस आई विल शो यू समथिंग। ग्लोबलाइजेशन गुड और बैड, ऐसे इसका खाली इंट्रोडक्शन लिखो, 40-50 वर्ड का, 20 वर्ड का, जितना तुमसे होता है, और 3-4 अलग अलग इंट्रोडक्शन बताओ मेरे को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन लिखे सब लोग, ग्लोबलाइजेशन गुड और बैड। हाँ तो लिखो देवांशी, उसको विथ कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, किसी स्टोरी से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं,
मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग काफी है। किसी काल्पनिक स्टोरी को बनाओ, ठीक है। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आता है तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन ये होता है, वन इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले इन आफ्टरनून, when I became at this age, when I went around 4 o'clock, the whole playground was desert and children are sitting inside the home playing with the video games, no one is coming to play outside. And then I really suddenly realized that globalization is real. तो ये देखो काल्पनिक तरीके से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करो, कोट से स्टार्ट करो, 2-3 अलग तरीके से इसको लिखो। किसी थियरिस्ट का कोटेशन याद है, उससे लिखो। सब लोगों को पार्टिसिपेट करें इसमें। हाँ, हाँ देवांशी, जो भी है लिखो अभी, चलो। जिगर, वेरी गुड, इसको लिखो अभी, 2-3 अलग अलग तरीके से लिखो अभी आप। हाँ, WTO से भी स्टार्ट कर सकते हो जिगर आप। देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स इन ऐसे। जिसने कंप्लीट कर लिया है दिखाना मुझे, एक बार हैंड रेस करे। किसी ने लिखा अभी तक? जस्ट शो मी। Only this is how you can develop. मीनिंग से लिखो, किसी एनेक्डोट से ट्राई करो, शब्दों को दिखाओ मुझे। किन ने और लिखा है एक दो तरीके से।
ज्यादा सोचो मत, जो भी दिमाग में आता है लिखो फटाफट। हाँ, मीनिंग आता है, मीनिंग लिखो, मीनिंग से स्टार्ट करो उसको। जो भी मीनिंग पता चलता है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, गुड्स, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, हाँ देखो ये मीनिंग से लिखा है, ये भी सही तरीका है। ओके, मीनिंग से स्टार्ट किया है, और भी अलग तरीके से कुछ स्टार्ट करो। देखिए, अभी क्या करोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो आप सब लोग? हाँ, कौन सा? दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार, कौन सा पढ़ते हो? एक डायरी बनाओ सब लोग, उस डायरी में न्यूज़पेपर से जहां से भी आता है ना कोट्स, डेटा, और इसका कलेक्शन करो टॉपिक वाइज। तो ऑल दिस डेटा शुड बी रेडी, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ता है तो। यूपीएससी नोटिफिकेशन, एबिलिटी टू टेक व्यू ऑन सोशियो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? मीनिंग तो सभी लोग लिखेंगे। एग्जाम कैसा है, एब्सोल्यूट मार्किंग होता तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, कोई कैसा भी लिखे, क्योंकि 35 मार्क्स के ऊपर आएंगे तो हम तो पास हो जाएंगे। बट हमको दूसरों से अच्छे मार्क्स लाने, तो दूसरे लोग भी तो मीनिंग लिखेंगे। तो हमको अगर और कोई तरीका नहीं पता है तो हम मीनिंग लिख के आएंगे। लेकिन कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं? वन अर्ली मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर. On the front page of the newspaper, there were two paradoxical or contradictory news. In the front page, there was news regarding farmers growing through BT cotton in Maharashtra. They are doing suicide. And on the same front page, there was news that the Indian economy is receiving billions of dollars of FDI, creating thousands of jobs. बस इतना ही। तो ये इंट्रोडक्शन अच्छा है? क्यों अच्छा है? बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस्ड है? पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आगे लिखो, ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड और इज अ टू साइडेड कॉइन। लेकिन ये अच्छा क्यों है? क्योंकि आपने एग्जामिनर को पहली चीज ये शो कर दी कि दैट आई हैव एबिलिटी टू टेक बैलेंस्ड व्यू। क्लियर? फिर आपने इनडायरेक्टली एग्जामिनर को यह भी बता दिया कि मैं आगे ऐसे में क्या लिखने वाला हूं। इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और सिर्फ इंट्रोडक्शन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन आता है, देयर इज जेंडर गैप in education in India. Question: what are its causes and solution? अभी इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? जेंडर गैप मतलब समझते हो ना, मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। किसी भी एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री में इफ मेल्स are more literate than females, then there is always gender gap. And traditionally all societies has been patriarchal. तो फीमेल्स का हमेशा से जेंडर गैप कम रहा है बिकॉज ओनली मेल सन को ही ज्यादा प्रिविलेजेस, प्रायोरिटीज दिए जाते थे और फैमिली के रिसोर्सेज उसके पीछे ही स्पेंड किए जाते थे बिकॉज
It was thought that he would grow and he would earn money and he will take care of the whole family. इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, डेटा रिपोर्ट, फिर चलो आपको पता भी नहीं है लेकिन तरीका तो बताओ. वेरी गुड, whoever has answered, डेटा जो भी है वो, लेकिन वो एग्जामिनर उससे क्यों इंप्रेस होगा? तो वो तो चलो आप नॉलेजेबल हो, आप सही हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा ये लिखोगे तो. क्यों? देखो, इंट्रोडक्शन में है ना हमेशा कंटेक्स्ट लिखते हैं, मीनिंग नहीं. मीनिंग लिखना गलत नहीं है लेकिन वो सब लोग लिखेंगे, हमको उनसे बेहतर करना है. कैसे? तो इंट्रोडक्शन में हमेशा कंटेक्स्ट लिखते हैं. ठीक है, कंटेक्स्ट क्या होता है? किस संदर्भ में है. तो जेंडर गैप किस संदर्भ में है ये लिखना है ना. इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मेल लिटरेसी फॉर एग्जांपल इज 85%, फीमेल लिटरेसी इज फॉर एग्जांपल 75%. सो दिस गैप ऑफ 10% ऑफ जेंडर गैप इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कॉजेस. बहुत सिंपल है ना, लेकिन एग्जामिनर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा. वो क्यों होगा? क्योंकि आपने पहली लाइन में बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. पहली लाइन में एग्जामिनर को इनडायरेक्टली ये बता दिया कि मुझे पता है आपने एक क्वेश्चन ही क्यों बनाया है. क्योंकि अगर सेंसस में गैप नहीं होता तो यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा. तो हमेशा इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट. क्वेश्चन आता है सरोगेसी बिल, काफी बीच में न्यूज में था. व्हाट इज सरोगेसी, राइट, इज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट, क्या आएगा? सरोगेसी बिल is related to maternal reproductive health of a woman. इतना भी लिख दोगे ना, एग्जामिनर विल बी 1000 times impressed than you, क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं लिख पाएंगे. सरोगेसी बिल इज रिलेटेड टू व्हाट? भाई कोई चीज है, किससे रिलेटेड है पहले वो तो बताओ, फिर आप मीनिंग लिखो. रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ ऑफ अ वुमन. समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन आता है फाइनेंस कमीशन पे, पॉलिटी पे, पहली लाइन क्या लिखोगे? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. देखो कितना सिंपल इंट्रोडक्शन है, लेकिन आपने क्या लिखा है? कंटेक्स्ट. क्योंकि अगर फेडरल कंट्री नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो ऐसी बॉडी की जरूरत ही नहीं पड़ती जो पैसा डिवाइड करेगी दो टायर के बीच में. आप इतना मैच्योरिटी उस एग्जामिनर को बता रहे हो सिंपल इंट्रोडक्शन लिख के, और ये आम लोग समझ भी नहीं पाएंगे. क्या है इंडिया इज फेडरल कंट्री, इसमें क्या हो गया? इसमें तो कोई डेटा भी नहीं है, इसमें तो कोई कोड भी नहीं है. लेकिन आपने क्या लिखा है इसमें? कंटेक्स्ट. वो जो एग्जामिनर होगा ना वो समझ जाएगा. दूसरे लोग समझे ना समझे, इट्स नॉट नन ऑफ योर कंसर्न. You have to just impress the examiner. तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है सब लोग समझे जी? ये भी देवांशी एक ठीक इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबको समझ में आया? कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? है जी, देखो देयर वाज अ टॉपर, उसके पास पता है क्या था? ऑप्शनल के सारे 200-300 इंट्रोडक्शन रेडी थे, 200-300 कंक्लूजन रेडी थे, 100-200 डायग्राम्स रेडी थे और डाटा भी रेडी था. तो ऐसा आपको भी करना है.
स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स आप मल्टीपल आंसर्स में लिख सकते हो। कैसे, आज मैं बताता हूं। अगर आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आता है और इन्हीं चीजों से एग्जाम में स्पीड बढ़ती है। देखो, पेपर 1, 2, 3, 4 20 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। कैंडिडेट ए है, इसको ध्यान से समझो, कैंडिडेट ए है, वो 20 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लिखता है। कैंडिडेट ए वो सिर्फ 12 to 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बना के जाएगा, लेकिन वो ऐसा कंटेंट लिखेगा ना कि किसी ने भी इंडिया में नहीं लिखा होगा। लेकिन कैंडिडेट बी है, उसके पास एवरेज कंटेंट है, लेकिन वो सारे पेपर में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अब हमारा जो ये एग्जाम है ना, जो GS 1, 2, उसमें 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है या यू हैव चॉइस? यूनिवर्सिटी में होता है ना 3 out of 6, 2 out of 4, यहां पे ऐसा है। तो इसका क्या इंपैक्ट आता है तैयारी पे? इसका क्या इंपैक्ट आता है तैयारी पे? देखो, एक होता है विड्थ और एक होती है डेप्थ। विड्थ मींस नंबर ऑफ टॉपिक्स यू आर प्रिपेयरिंग। विड्थ, नंबर ऑफ टॉपिक्स यू आर प्रिपेयरिंग। फॉर एग्जांपल, GS पेपर 2 है, उसमें मैंने 500 टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, कैंडिडेट ए ने। कैंडिडेट बी क्या करता है, GS पेपर 2 में 5000 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाता है। तो विड्थ किसकी ज्यादा हुई, लेकिन डेप्थ किसकी ज्यादा होगी? ए की, क्योंकि कम टॉपिक किए हैं तो डेप्थ ज्यादा होगी, उसने बहुत इन डेप्थ स्टडी किया होगा। तो यूपीएससी में हमको किस चीज का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, विड्थ का या डेप्थ का है? क्यों? विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों? knowing something about everything. ये देखो, कंपलसरी है ना, 20 के 20 क्वेश्चन कंपलसरी है, यू डोंट हैव चॉइस। तो यहां पे विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों कैंडिडेट्स में से टोटल मार्क्स किसके ज्यादा हो जाएंगे? बी के, ए के नहीं। इसलिए इस एग्जाम में बहुत ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं ना, वो रह जाते हैं, लेकिन जो एवरेज कंटेंट रख के बहुत ही ज्यादा लेबोरियस होते हैं, वो निकल जाते हैं। क्योंकि जब उनका क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है ना सारे पेपर्स का मिला के, तो ये कैंडिडेट बी आगे निकल जाएगा। देयर वाज अ स्टूडेंट, व्हाट ही टोल्ड टू मी दैट before exam he had 200 words of content on every topic and subtopic of syllabus and he cleared later. नक्सलिज्म पे पूरी की पूरी किताब पढ़ लोगे, फिर बाकी का सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। ऐसे दिखने में इजी लग रहा है, जब इन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हर पेपर में पहले क्या करो, टॉपिक की लिस्टिंग करो और सब पे कंटेंट बना डालो, लेकिन मिनिमल कंटेंट तो सारे टॉपिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना, उसका क्यूमुलेटिव स्कोर ये कैंडिडेट चाहे कितना भी अच्छा पढ़ के आए, उससे हमेशा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसको क्या होगा, जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो कैंडिडेट ए है उसको 10 में से 7 मिलेगा, 10 में से 8 मिलेगा, समझ लो, लेकिन उसने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो सीधा 50 माइनस हो गया ना उसका। लेकिन कैंडिडेट बी क्या करेगा, 10 में से उसको 5 मिला, 10 में से 6 मिला, 10 में से 4 मिला, लेकिन उसने माइनस कितना हुआ उसका, कुछ भी नहीं, हर क्वेश्चन में गेन कर रहा है वो, तो उसका क्यूमुलेटिव स्कोर ज्यादा बढ़ जाता है बी का कंपेयर टू ए। सो हु इज मोर वाइज? यू डोंट हैव टू शो योर इंटेलेक्चुअल और बिग थिंग्स, तुमको है ना बस एग्जाम निकालना है, फिर बाद में जो करना है करो।
इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इस एग्जाम को निकालना है ना, तो इस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। एक मैच्योर्ड माइंड चाहिए। ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, वहां का मटेरियल ले लो, वहां का मटेरियल ले लो, इससे कुछ नहीं होगा। पेपर, नंबर ऑफ टॉपिक्स, 200 वर्ड्स कंटेंट ऑन एवरी टॉपिक इज इक्वल टू IAS। सिंपल स्ट्रेटेजी है ये। विड्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फिर डेप्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना है फ्रॉम डे वन। ठीक है। अभी मैं बोल रहा था कंक्लूजन, ऐसे स्टैंडर्डाइज कंक्लूजन हो सकते हैं क्या? जैसे अगर क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर पे, फॉर एग्जांपल स्तूपा पे आ गया, किसी मॉन्यूमेंट्स पे आ गया, पेंटिंग पे आ गया, हैं, डांस पे आ गया। मैं आज आपको एक कंक्लूजन देता हूं, 80 to 90% कोई भी क्वेश्चन हो आर्ट एंड कल्चर का, आप उसमें लिख के आओ, आपको 1 मार्क ज्यादा मिलेगा। कैसे? देखो, पॉलिटी में एक DPSP है, विच इंपोजेस ड्यूटी ऑन द स्टेट टू कंजर्व अवर नेशनल मॉन्यूमेंट्स है। एक फंडामेंटल ड्यूटी है विच इंपोजेस ड्यूटी ऑन ऑल द सिटीजन्स टू प्रिजर्व अवर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। तो लिख दो, इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर DPSP, पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। नाम भी याद नहीं है तो सिर्फ DPSP FD लिख दो, फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व अवर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। क्योंकि ये सब क्या है, अब एग्जामिनर इससे आपके दूसरे कैंडिडेट से 1 मार्क ज्यादा क्यों देगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। और आप क्या उसको इंटरलिंकेज कर रहे हो? पॉलिटी। ये देखो, ऐसा कंक्लूजन जो हिस्ट्री में PhD किया होगा ना वो भी नहीं लिख पाएगा। बट बीइंग अ सिविल सर्वेंट, UPSC इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस। तो स्टैंडर्डाइज इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइज कंक्लूजन, स्टैंडर्डाइज चार्ट्स आर पॉसिबल, and with this kind of standardized content your speed will increase and you will be able to attempt all 20 questions. तो ऐसा करना है। स्टैंडर्डाइज क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, जैसे आप कोई भी XYZ गवर्नमेंट स्कीम उठा लो, नरेगा, बीमा योजना, इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास, XYZ कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लिखा दो। मैं आपको 4 ऐसे क्रिटिसिज्म देता हूं, आंख बंद करके लिख के आना। एक, करप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेड टेपिज्म, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी ही तो इंप्लीमेंट करेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, तो रेड टेपिज्म तो होगा ही उसमें। करप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। फिर प्रॉपर स्कीम का पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए और बेहतर, और अच्छे तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखो, इतना पॉइंट तो बन ही गया। फिर इसमें क्या करो, वर्ड्स चेंज कर दो। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जगह पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन लिख दो। कंटेंट वही है, खाली लैंग्वेज चेंज कर दिया आपने। This is how you will make your answers different from another in order to gain just 1 mark. आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फोकस इतना करना है कि दूसरे कैंडिडेट से 1 मार्क कैसे ज्यादा लाना है। बस हर क्वेश्चन में आप करो, आपके मोर देन 100 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे। तो इस तरह का स्टैंडर्डाइज कंटेंट सब बनाएंगे। फिर इस एग्जाम में और क्या चीज जरूरी है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा पे पकड़। जिसकी अच्छी भाषा होगी उसको 1 मार्क ज्यादा मिलेगा, सिंपल। लेकिन अच्छी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि फ्लावरली इंग्लिश। RTI पे क्वेश्चन आता है, बिकॉज ऑफ RTI इन सोसाइटी
देयर इज वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल दी सिटीजन। उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं तो आरटीए हैज लेड टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाषा चेंज हुई कि नहीं? वुमन पे अगर क्वेश्चन आता है उसमें लिखो कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमन अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। मिसिंग वुमन का क्या कंसेप्ट था? जितना भी एबॉर्शन से या जो भी होते हैं, फोर्टिसाइड होता है, फीमेल होती है तो फोर्टिसाइड कर देते हैं। तो जितनी इंडिया में फीमेल्स पैदा होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। सो वेयर आर दिस मिसिंग वुमन? फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा मेल दूसरी सिटी में चले जाते हैं काम करने और वुमन एग्रीकल्चर लेबर बन जाती है। तो ये क्या हो गया? फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। पॉपराइजेशन ऑफ वुमन मतलब क्या होता है? अगर जैसे कोरोना वायरस आया तो इनफॉर्मल जॉब सबसे पहले चले जाएंगे मेड्स के, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको होगा? वुमन। तो वुमन गरीब हो रही है तो क्या हो गया? पॉपराइजेशन ऑफ वुमन। वुमेन्स आर एम्प्लॉयड इन पिंक जॉब्स। पिंक जॉब्स क्या होता है कि कंपनी में जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होंगे वहां पे सिर्फ मेल होंगे, सीईओ, डायरेक्टर, लेकिन रिसेप्शन, पीआर, यहां पे वुमेन्स को एम्प्लॉय किया जाता है। सो दिस इज हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय पुटिंग देम इन पिंक जॉब्स। आपके वर्ड्स अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको अपना वोकैब बहुत स्ट्रांग करना है। पॉल्यूशन आता है तो एनसीईआरटी के पीछे वो ग्लोसरी दी होगी, उसको लो। अगर उसमें वर्ड्स यूज करो ऐसे में, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सारे वर्ड्स डालो। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन यूपीएससी डज नॉट डिमांड्स हाई-फाई इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट सिंपल लैंग्वेज बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स। ये जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना उसका कलेक्शन करो और उसको आंसर में डेलिबरेटली यूज करो। क्या करो? एक आंसर लिखो, फिर इसका सेल्फ इवेल्युएशन करो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे मैं और कौन से वर्ड्स ऐड कर सकता हूं। तो देखो आपका आंसर पे 1 मार्क ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपका काम हो गया। अपने ही आंसर 10 आंसर जो आपने पीछे लिखे हो ना उसको रिव्यू करके ऐसे उसमें वर्ड्स डालने की कोशिश करो, क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको 1 मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है? लैंग्वेज पे पकड़, भाषा पे पकड़, मतलब हाई-फाई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए हमको। वो जो एमबीए कैट में होता है ना, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यूपीएससी। यूपीएससी रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या जनरल जीएसपी है, उसमें स्टैंडर्ड टेक्निकल वर्ड्स यूज करो। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में से उठाओ और उसको यूज करो। ठीक है? नाउ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हैंडराइटिंग देखो, अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं कि मार्क्स कटेंगे, बट अच्छी है तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करेंगे? या खराब हैंडराइटिंग से भी चलेगा? गांधी जी की भी तो थी ना, उन्होंने पता है क्या कहा था? बैड हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। तो यहां पे किस किस का इम्परफेक्ट एजुकेशन रहा है? हैंड रेस करें तो उसको परफेक्ट करो। तो हैंडराइटिंग कैसे सुधारोगे आप? अभी से देखो हैंडराइटिंग कैसे सुधारते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल टेक्निक देता हूं, डेली 10 मिनट आप अभी से प्रैक्टिस करिए, 3 महीने में आपकी हैंडराइटिंग सबसे बेस्ट हो जाएगी। देखो कैसे। अच्छी हैंडराइटिंग और खराब हैंडराइटिंग में क्या डिफरेंस होता है? जो अल्फाबेट्स होते हैं ना इंग्लिश में, आप इंग्लिश किस में, अल्फाबेट्स में ही लिखोगे या हिंदी में इंग्लिश लिखते हो? कितने अल्फाबेट्स है टोटल? 100, 200, 1000, कितने हैं? सिर्फ 26 अल्फाबेट्स है। ये मैंने ए लिखा है, 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 कोई ऐसे भी लिखता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? शेप।
तो मैं अगर हर बार इस तरीके से लिखता हूं तो मैंने क्या कर दिया, शेप का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया ना। तो एक अच्छी सी कोई भी बुक स्टोर पे जाओ जहां वो बच्चों की बुक्स मिलती है, कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक लेके आओ और अपने जो 26 अल्फाबेट है ना, पहले उसके शेप ठीक करो। वो टेढ़े मेढ़े होंगे तो ध्यान से देखोगे तो कोई ई ऐसे लिख देता है तो कोई ऐसे लिख देता है, ठीक है। वो आप अपनी हैंडराइटिंग देखोगे तो समझ जाओगे। और नहीं समझ में आता है तो कर्सिव हैंडराइटिंग का अल्फाबेट और अपना अल्फाबेट कंपेयर करना, शेप आपको पता चल जाएगा। फिर क्या करो, एक एक अल्फाबेट की प्रैक्टिस करो, शेप की स्टैंडर्डाइजेशन का। फिर उसको अपनी राइटिंग में लाओ और तभी आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन आपको शेप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है स्पीड बढ़ाने के लिए, यही शेप मेंटेन करके रखना है, शेप का स्टैंडर्डाइजेशन करके रखना है। इस शेप में जितनी स्पीड आती है उतनी स्पीड से लिखना है, अगर नहीं होता है तो नहीं लिखना है। फिर स्पीड है ना आपकी 6 महीने बाद खुद ही खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब ये सबकॉन्शियस हो जाएगा। तो हाउ टू इंप्रूव योर गुड हैंडराइटिंग, बाय स्टैंडर्डाइजिंग द शेप ऑफ 26 अल्फाबेट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। आप लाइफ में कुछ करो ना करो, अच्छी हैंडराइटिंग अच्छी करो, क्योंकि गांधी जी बोल के गए हैं, बैड हैंडराइटिंग इज द साइन ऑफ क्या, इम्परफेक्ट एजुकेशन। तो यूपीएससी में इस हिसाब से हम हैंडराइटिंग इंप्रूव करेंगे। फिर हमने ये सब देखा। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में पता चलता है क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है। अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ वुमन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है और यहां पे कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं है, 200 वर्ड्स है, ठीक है। तो 3 सिचुएशन होगी, कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं है इसके पीछे अगर मैं ऐसा लिख देता हूं एलाबोरेट, और अगर इसके पीछे मैं ऐसा लिख देता हूं डिस्कस, तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर के कंटेंट में डिफरेंस होगा या आंसर सेम ही रहेगा? क्वेश्चन टैग नहीं है, अगर क्वेश्चन टैग एलेबरेट है और क्वेश्चन टैग डिस्कस है, क्या होगा बताओ? तीनों कंडीशन में आंसर सेम रहेगा ना या अलग अलग हो जाएगा? देखो, एलेबरेट, एलेबरेट मतलब जो है ना उसको बड़ा करो। क्या पूछा है? रोल ऑफ वुमन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इफ यू विल सी इंडियन नेशनल मूवमेंट, यू कैन क्लासिफाई वुमन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी। वुमन हु आर फॉलोइंग गांधीयन आइडियोलॉजी, वुमन हु आर फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, वुमन फॉलोइंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो उनका रोल क्या रहा है लिख दो, तो एलेबरेट हो गया कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वुमन कंट्रीब्यूशन दिस, इसका दिस, थर्ड दिस। एनी बेसंत होम रूल मूवमेंट, प्रीतिलता वाडेकर she was involved in with Surya Sen, चित्तागोन आर्मरी रेड, फॉरेन कंट्रीज, फिर इंडिया और आउटसाइड फॉरेन कंट्री में वर्ल्ड ने क्या क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, मैडम भिखाजी कामा, इंडिया में क्या था। तो ये एलेबरेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन टैग लिख देता हूं डिस्कस, तो सेम कंटेंट आएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वुमन का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट में एलेबरेट करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब द रोल प्लेड बाय वुमन, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज गुड, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज बैड, व्हाट प्रॉब्लम्स वुमन फेस्ड इन परफॉर्मिंग दैट रोल। ये एनालिसिस करना है, यहां पे एनालिसिस करना है, यहां पे फैक्ट बेस्ड है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे डिस्कस में, अर्बन वुमन, रूरल वुमन, अपर कास्ट वुमन,
lower caste woman. Nature of role, most of the women were followers, they were not leaders, except Annie Besant who provided leadership in home rule movement. क्या किसी भी गांधी जी की तरह किसी भी वुमन ने ऑल इंडिया लीडरशिप प्रोवाइड की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की? नहीं. ये देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस. कंपेयर्ड टू मैन, वुमन ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट वर फॉलोवर्स. Except few incidents, they didn't provided any leadership. Was there any ideological contribution of any woman? गांधी ने गांधीन कंसेप्ट दिया. भगत सिंह bought the concept of socialism in revolutionary terrorism. वुमन का कहां था ऐसा आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन? क्योंकि उस टाइम पे वुमन इतनी पढ़ी ही नहीं थी, एक्सेप्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी जो अनी बेसेंट का था, उन्होंने कुछ न्यू आइडियोलॉजी दी थी, बाकी किसी वुमन का आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ही नहीं था. व्हाट प्रॉब्लम्स वुमन फेस्ड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन नेशनल मूवमेंट? पैट्रियार्की, इलिटरेसी. तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, डिस्कस, और यहां पे एलेबरेट. तो ये क्वेश्चन टैग का डिफरेंस होता है. अब ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन टैग को कंसीडर ही नहीं करते हैं. रोल ऑफ वुमन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, लिख किया, यूपीएससी हमको मार्क्स नहीं दे रहा है. मैंने तो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ दिया, पूरा इग्नू पढ़ दिया. हियर व्हाट इज लैकिंग इन यू? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. You are unable to write relevant, precise and succinct answer, which we first see in the notification of UPSC. UPSC क्या बोलता है भाई, relevant content लिखो. क्वेश्चन टैग ये है डिस्कस, और कंटेंट ये लिख के आ रहे हो. Is it relevant content? You will get marks, even though if you have written contribution of 100 women. UPSC is not giving to you to give marks, because here you are unable to think logically. That is your weakness. नोटिफिकेशन में था ना, देखो कहां आ रहा है. तो ये क्वेश्चन टैग हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी इतना बेसिक स्किल्स बहुत है. हम आगे भी देखेंगे आंसर राइटिंग में, और आप कभी भी अपने आंसर्स लिख के यहाँ पे चेक करवा सकते हो, मैं चेक कर दूंगा. आज का सेशन हम बेसिक स्किल्स पे ही रखते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप वो एडवांस स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे. बट फॉर टाइम बिंग आप पूरा का पूरा अभी ध्यान प्रेजेंटेशन पे करो. बस एक वो 10% रूल लगा के आंसर प्रैक्टिस करो. लैंग्वेज पे काम करो. इंट्रोडक्शन अलग तरीके से, कंटेक्स्ट लिखो. कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म में स्टैंडर्डाइज कंटेंट डेवलप करो जिससे स्पीड आए. पूरा का पूरा टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा कवर करो, उसकी पेपर वाइज लिस्टिंग बनाओ. लैंग्वेज पेपर की प्रिपरेशन करो. तो आज हमने काफी सारा सीखा है. सीख के सिर्फ इसको छोड़ नहीं देना है, घर पे जाके इसको इंप्लीमेंट करना है. एंड बिलीव मी, मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर ये चीज आपने कर दी, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा. आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इट्स हियर वी आर एंडिंग द क्लास. इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन आस्क मी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए. यहाँ स्टाफ से ले लेना देवांशी, स्टाफ से कांटेक्ट कर लेना. हाँ, 3 दिन पहले मॉडर्न हिस्ट्री के सर ने क्वेश्चन दिया था कि इफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर टुगेदर वी कैन इंडिपेंडेंट इन 90. तो उसमें आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? वो तो पूरा हाइपोथेटिकल था. आंसर कैसे फ्रेम करेंगे उसमें तो मुझे देखो, अभी वो सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे आइडिया नहीं है. देखो, वो आंसर लिख के आओ, मैं तुमको प्रेजेंटेशन पे काम कर सकता हूँ. कंटेंट पे सर से पूछो. नहीं, मतलब खाली पूछना था कि हाइपोथेटिकल हो तो उसमें फ्रेमिंग कैसे करेंगे? हाइपोथेटिकल जनरली पूछता नहीं है सर ने यूपीएससी. ऐसा अभी वो बोला है तो वो सर से पूछो, बिकॉज ही वुड बी हैविंग मोर नॉलेज देन मी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. व्हाट कैन आई गाइड यू इज इन कंटेंट रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट, and in his subject what I can just do is your presentation skills. So he is the best person to guide you. ठीक है.
चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.